اشرف سارا دن بے چین رہی۔ محراب کو بتا دوں؟ سجاول نے کال کا کہا ہے۔ نہیں بتاتی، اگر کوئی ایسی ویسی بات نہ ہوئی تو سب مجھے برا سمجھیں گے۔ اسی کشمکش میں دن گزر گیا۔ جیسے جیسے رات ہوتی جا رہی تھی اشرف کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے کہ اچانک فون بجنے لگا۔ کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سجاول تھا۔ کیسی ہو بیوٹی؟ کیا بات کرنی ہے کرو ورنہ میں فون بند کر دوں گی۔ یہ غلطی مت کرنا۔ اس سے وفا کر رہی ہو جو مہینے میں ایک دن آپ کے پاس سونے آتا ہے؟ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے اور محراب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ سجاول زور زور سے ہنسنے لگا۔ پیار جسے مرد کرتا ہے، رات کو مرد کی کوشش ہوتی ہے اسی کے بستر پر سوئے۔ میں نے فون کاٹا، اس نے فوراً کر دیا۔ دیکھو شب اپنی زندگی خراب مت کرو، ابھی بھی وقت ہے، میں تمہیں پوری عزت سے اپنا لوں گا۔ نہیں، میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں اور مجھے پوری زندگی اس کی ایک رات کے انتظار میں گزارنی پڑے جو وہ میرے پاس آتا ہے تو میں گزار دوں گی۔ اشرف، قسمت بار بار موقع نہیں دیتی۔ سجاول، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ اپنے دوست کی بیوی کو پرپوز کر رہے ہیں۔ اشرف، یہ میرا شریفانہ طریقہ تھا، اگر تم نہ مانی تو میں دوسرے طریقے بھی جانتا ہوں۔ میں کل تمہارے گھر آؤں گا اور تمہارے منہ سے جواب ہاں میں سنوں گا۔ خبردار۔ اشرف نے فون بند کر دیا۔ ڈر کی وجہ سے پوری رات نہ سو سکی۔ اب کیا ہوگا؟ پاگل انسان پیچھے پڑ گیا ہے۔ اگلے دن اشرف تیار ہو رہی تھی اپنی امی کے گھر جانے کے لیے۔ نمرا اور محراب گھر پر نہیں تھے، کسی کام سے گئے تھے۔ اچانک روم کا دروازہ کھلا، پیچھے سے آ کر اشرف کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اشرف نے پیچھے دیکھتے ہی سجاول کو دھکا دیا۔ سجاول نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گرنے سے بچانے کے لیے آگے کھینچا تو اشرف سجاول کی باہوں میں آ گئی۔ اتنی دیر میں محراب سامنے کھڑا تھا۔ میری غیر موجودگی میں میرے ہی گھر میں تم سجاول کو بلاتی ہو؟ سجاول نے جلدی سے اشرف کو چھوڑ دیا۔ بد کردار عورت۔ نہیں نہیں محراب، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سجاول کی گندی نظر ہے مجھ پر۔ بد کردار ہے وہ۔ ارے مرد تو بد کردار ہی ہوتا ہے، کردار تو عورت کا حسن ہے، زیور ہے۔ کتنا پیار کرتا ہوں میں تم سے، تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا میرا؟ بس اشرف اور نہیں۔ اتنی دیر میں نمرا بھی آ گئی جو یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سجاول وہاں سے چلا گیا۔ محراب نے اشرف کو بازو سے پکڑا۔ چلو اب تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں۔ کوئی مرد اتنا بے غیرت نہیں ہوتا۔ محراب، کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھا جھوٹ ہوتا ہے۔ خدا کے لیے میری بات پر یقین کرو۔ بازو سے کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ گھر میں چندہ داخل ہوئی۔ یہ کیا محراب بھائی؟ کس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چندہ اندر بھاگی۔ نمرا، کیا ہوا؟ آپ کی اشرف بھابھی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ بھابھی ایسی نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے مس چمچی، تم تو یہی کہو گی نا۔ محراب کوئی اندھا نہیں ہے۔ اشرف کو سجاول کی باہوں میں دیکھا، ورنہ تو محراب اس بوڑھی عورت کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ آئی تھی بڑی میرے محراب کو چھیننے والی۔ کہاں چھینا اس نے؟ تمہارے پاس سوتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تم جانتی ہو کیا وہ صرف میرے روم میں سوتا تھا؟ کبھی اس نے مجھے بیوی ہونے کا حق نہیں دیا، ورنہ اب تک میرا بچہ نہ ہو چکا ہوتا۔ چلو اچھا ہے، وقت پر گندگی صاف ہو گئی۔ نمرا، تم نے میری بہو کو نکلوا دیا۔ ساس دور سے کھڑی چیخ رہی تھی۔ او مجھ پر الزام مت لگاؤ، بیٹا آ جائے تو پوچھ لینا، میں جا کر باجی کو تو خوشخبری سناؤں۔ فوراً ویڈیو کال کی بہن کو۔ باجی مبارک ہو، میرے راستے کا پتھر صاف ہو گیا۔ اچھا ہاں جی، آج میں بہت خوش ہوں۔ اتنی دیر میں محراب آ گیا۔ محراب، باجی سے بات کرو۔ جی بھابھی۔ محراب، مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے تمہارے لیے ایسی عورت سلیکٹ کی تھی۔ ساتھ ہی رونے لگی۔ محراب بھی رونے لگا۔ فون نمرا کو دے دیا اور جا کر اشرف کے روم کو ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا۔ کیا ہوا محراب؟ میں ہوں نا، تم اس بے وفا سے وفا کرنے کے لیے اپنی نمرا کو بھول گئے؟ محراب کی آنکھیں لال تھیں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے، میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی، میری غیرت سے کھیلتی رہی۔ اشرف، میری بچی رونا بند کرو۔ ماں میں بد کردار نہیں ہوں۔ محراب مجھے ویسے چھوڑ دیتی تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا، پر محراب بھی مجھے بد کردار سمجھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں سجاول کا فون بجا۔ بس اب کچھ دن بعد تم میری۔ اشرف چیخی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم جیسے بد کردار انسان پر۔ اشرف، ہمیں پتا ہے ہماری بیٹی بد کردار نہیں ہے۔ مما، میاں بیوی کا رشتہ تو اعتماد پر چلتا ہے، اشرف کے بھائی نے کہا۔ اب اگر وہی باقی نہیں تو اس رشتے کو باقی رکھنے کا فائدہ؟ ہاں میں بات کروں گا محراب سے، اشرف کے بابا نے کہا۔ آپ کو کہا بھی تھا لڑکا کم عمر ہے، یہ رشتہ مت کریں۔ اشرف کے بابا۔ بیگم یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام بھی ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑی تھیں، بس میری بیٹی کا نصیب خراب تھا۔ کچھ دن گزر گئے، سجاول آیا اشرف کے ابو کے پاس۔ انکل، میری وجہ سے اشرف کو چھوڑا ہے نا محراب نے، اگر چاہتا تو اپنی بیوی پر یقین رکھتا، مگر نہیں، مگر میں کروں گا اشرف سے شادی۔ جیتے رہو بیٹا، تم جیسے نیک دوست اور اتنی نیک بیوی پر یقین نہیں کر سکا، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ اشرف کے ابا کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا سجاول نے۔
महराब अब क्या सोच रहे हो? तलाक दो, जान छुड़वाओ और कितना शोक मनाओगे? महराब चुप था, अभी तक भी निम्रा से दूर था। निम्रा, आज मैंने सजावल को अशफ के अब्बू के साथ देखा है। मतलब अशफ वहाँ इसके साथ खुश है? हाँ और नहीं तो क्या, सजावल की अम्मी कुछ दिन बाद रिश्ता लेकर जाने वाली हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मुझे चंदा की अम्मी ने बताया। निम्रा, मुझे माफ कर दो। महराब ने निम्रा के सामने हाथ जोड़ दिए। कोई बात नहीं, अगर सुबह का भोला बसरा शाम को घर लौट आए तो इसे भोला नहीं कहते। मैंने आपको माफ किया। एक और बात में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जी जी, मैं आपके साथ हूँ। मुझे अशफ को भूलने में कुछ वक्त लगेगा। प्लीज मुझे वो वक्त दे दो ताकि जब तुम्हारी तरफ लौट कर आ जाऊं तो मेरी जिंदगी में वो कहीं ना हो। ठीक है, आप अशफ को जल्द से जल्द तलाक दे दो, मैं आपके साथ हूँ। मैं कुछ वक्त अमेरिका जाना चाहता हूँ अकेला। ठीक है, चले जाएं। बेटा बहुत अच्छा इंसान है सजावल, तुम्हें हर हाल में अपनाने को तैयार है। इसके जज्बात की कदर करो। बाबा जान, मैं अभी तक मेहराब के निकाह में हूँ। मैं इस गंदे इंसान से शादी नहीं कर सकती। इसी की वजह से मेरा घर खराब हुआ है। बेटी, तुम्हारा या इसका कसूर नहीं है। बाबा, मेरा कसूर नहीं पर इसी इंसान का कसूर है। अगर ये मेरे रूम में ना आता तो मेहराब इसको ना देखता। बेटी, पहाड़ जैसी जिंदगी है, अकेले नहीं गुजारी जा सकती। बाबा, मेहराब ने जो इल्जाम मुझ पर लगाया है वो तो हकीकत साबित हो जाएगा अगर मैं इससे शादी कर लूं तो। बेटी, जब वो तुम्हें छोड़ देगा तो इसे हम अपनी सफाई क्यों साबित करेंगे? सजावल अशफ के बाप को पूरी तरह अपनी बातों में लपेट चुका था। बाबा जान, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अचानक अशफ बेहोश हो गई। सारे घर वाले परेशान हो गए। सजावल को पता चला तो वो भी भाग आया। अशफ को सब अस्पताल ले गए। वो बेहोश थी। सजावल साथ साथ भाग रहा था। सामने से मेहराब आ रहा था, अपनी माँ के चेकअप पर आया हुआ था। सजावल को अशफ के साथ देखकर बहुत गुस्सा हुआ और रोने लगा। कितनी बेवफा हो। अच्छा है मर ही जाओ। क्या इतना कच्चा था हमारा रिश्ता, कांच जैसा? अपनी माँ की रिपोर्ट्स लेने लैब गया तो वहां अशफ का भाई अशफ की रिपोर्ट्स ले रहा था। कोई फिक्र की बात नहीं है? इसके भाई ने पूछा। नहीं, इस हालत में स्ट्रेस ना दें। मतलब इस हालत में अशफ के भाई ने इस लफ्ज पर जोर दिया। आपकी पेशेंट 2 माह की प्रेग्नेंट है। मेहराब के तो होश उड़ गए। ये क्या? अशफ मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? इतनी बड़ी खुशी! अशफ, ये तुमने क्या किया? मुझसे इतनी बड़ी खुशी छीन ली। मेहराब बाहर लॉन में बैठा था हॉस्पिटल के, सोचों में गुम। सजावल बाहर आया और किसी को फोन पर बता रहा था कि अब क्या करूं। वो मेहराब के बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं बहुत परेशान हूँ। इसका बाप हमारी शादी के लिए मान गया है। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, वो मुसलसल किसी की बात सुन रहा था। अच्छा अच्छा, मैं पैसे लाखों लगा सकता हूँ। मेरी अब यही कोशिश होगी कि बच्चा खत्म हो जाए। मेहराब ये बात सुनने के बाद तो जैसे पागल हो गया। ये जालिम इंसान अशफ के साथ मिलकर मेरे बच्चे को मारेगा, अब क्या करूं? उठकर भागा। जिस रूम में अशफ थी वहां पहुंच गया। मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। रुक जाओ मेहराब, अशफ के बाबा ने कहा। कौन सी बीवी जिसको बदकिरदार कहकर मेरे घर छोड़ गए थे? अंकल, मैं अपने किए की माफी चाहता हूँ। वो अशफ के बाबा के पाँव में गिर गया। अशफ जब कुछ होश में आई तो मेहराब को देखकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। अशफ प्लीज घर चलो। कौन से घर? अशफ प्लीज मेरी बात को समझो, मेरे बच्चे की जान को खतरा है। इतनी देर में सजावल किसी लेडी डॉक्टर को साथ ले आया। आप लोग बाहर जाएं, मैंने चेकअप करना है। नहीं डॉक्टर, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है। सजावल इसकी तरफ देखने लगा। ये मेरे बच्चे को मारना चाहता है। वो जोर जोर से चीखने लगा। इस शर्त पर अशफ को अपने साथ घर ले आया कि जैसे बच्चा हो जाएगा मैं अशफ को तलाक दे दूंगा, तब तक ये मेरे घर में रहेगी। मेहराब, तुम क्यों इस बदकिरदार औरत को उठा कर ले आए हो? निम्रा, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। निम्रा हंसने लगी। क्या पता बच्चा सजावल का हो। निम्रा, अपनी हद में रहो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। मेहराब ने काम वाली से अशफ का रूम ओपन करवाया। सफाई करवा कर अशफ को इसके रूम में बिठा दिया। खुद इसके लिए जूस बनाने चला गया। अशफ ने मेहराब की एक बड़ी तस्वीर अपने बेड के सामने लगा दी। जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकती। खुद निम्रा के रूम की तरफ चल पड़ा। बाजी, मेरी सारी खुशियां बर्बाद हो गई हैं। वो डाइन वापिस आ गई है। अब तो बच्चा भी होने वाला है। मेहराब सुबह से इसकी खिदमत में लगा हुआ है। अच्छा फिक्र ना करो, जल्द ही इस बच्चे का भी टिकट करवाती हूँ। फिर भाभी जोर जोर से हंसने लगी। आज से अशफ के सारे काम तुम करोगी। लेकिन क्यों बाजी? ये सब कुछ मेहराब सुन रहा था। मेरे बच्चे की जान को यहाँ भी खतरा है, अब क्या करूं? मेरे खुदा। हाँ हाँ, चंदा को बुलाता हूँ। चंदा, मेरी जल्दी से मेरे घर आओ। खैर तो है ना? हाँ हाँ खैर है। जी मेहराब भाई, क्यों बुलाया? चंदा का हाथ पकड़कर अशफ के रूम में ले आया। सरप्राइज! आप भाभी को ले आए? अशफ के गले लग गई। मैंने कहा था ना, भाभी का कोई कसूर नहीं। चंदा मेरी बहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी बोलो। तुम कुछ माह तक मेरे घर रह सकती हो? हाँ क्यों नहीं। अशफ का बच्चा होने वाला है, तुम इसका ख्याल रखना। निम्रा अच्छी बनकर आ गई। कैसी हो अशफ? कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना।
शुक्रिया, चंदा रखे रहेगी अशरफ के पास। मेहराब ने जैसे ये बात निम्रा को बताई, वो उठकर अपने रूम में चली गई। मेहराब अब 2 दिन से कुछ सुकून में था, अशरफ का पूरा ख्याल रखता था, चंदा के आने से अब बेफिक्र था। 2 दिन बाद चंदा की माँ आई, साथ मिठाई भी ले आई। ये लो, सब मुंह मीठा करो, चंदा का रिश्ता पक्का हो गया है। वाह चंदा, आपने तो बताया ही नहीं, अशरफ ने कहा। चंदा अम्मी जान, मुझे भी बता दें किसके साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है। सब अशरफ के रूम में बैठे थे, सजावल के साथ। सबने हैरान होकर चंदा की माँ के मुंह की तरफ देखा। ये कैसे मुमकिन है? मेहराब फौरन बोला और अशरफ की तरफ देखने लगा। आंटी बहुत बहुत मुबारक हो, अशरफ ने कहा। चंदा अम्मी जान, ये कैसे हो सकता है? हाँ हो गया, और जो कुछ वो करता रहा है उस पर शर्मिंदा भी है। 1 हफ्ते के बाद इसने वापस अमेरिका चले जाना है, इसलिए सारी तैयारी आज ही करनी है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कल रात को रुखसती है, तुम सब ने जरूर आना है। मेहराब दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और अशरफ के इम्प्रेशन देख रहा था, जो कि बहुत खुश लग रही थी। अशरफ खुश क्यों है? अगर ये सजावल से प्यार करती है तो इसे दुखी होना चाहिए। अशरफ बेटी, तुम जरूर आना। नहीं आंटी, अशरफ नहीं आ पाएंगी। क्यों नहीं? आंटी, चंदा की शादी हो और मैं ना आऊं, ये कैसे मुमकिन है? चंदा अपनी माँ के साथ चली गई अपने घर। निम्रा अपने रूम में फोन पर लगी हुई थी। मेहराब अपनी माँ के पास गया। कैसे हो बेटा? अम्मी जान, आपका बेटा बहुत तकलीफ में है। क्या हुआ मेरा बच्चा? अम्मी जान, एक इज़्तिराब है जो मुझे खा रहा है। अशरफ ने क्यों बेवफाई की? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अब सजावल चंदा से शादी कर रहा है, अशरफ खुश है इस शादी से। वो आखिर क्या चाहती है? बेटा, अशरफ बहुत अच्छे खानदान से है, एक बाकिरदार बच्ची है। तुम यहाँ नहीं थे, वो मेरे साथ रही है, मैं जानती हूँ इसको। खुद को इस शख्स से निकालो, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मेहराब साहब, सजावल और इसकी अम्मी आए हैं। ओके, बिठाओ उनको, मैं आता हूँ। अम्मी जान, मैं बाद में आता हूँ। वह हाल में गया तो सजावल जो इतना मॉडर्न होता था, इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई थी, हालत खराब थी। मेहराब, मुझे माफ कर दो। आते ही मेहराब के कदमों में गिर गया। हाँ मेहराब बेटा, तुम और अशरफ मेरे बच्चे को माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेहराब ने सजावल की माँ के हाथ पकड़ लिए। माँ जी बस करें, आप मुझे शर्मिंदा मत करें, मैंने माफ किया। चाय पीने के बाद सजावल ने कहा, मैंने अशरफ से भी माफी मांगनी है। हाँ बेटा, हमें अशरफ के रूम में ले जाओ। जी आंटी। इतने में निम्रा भी मिलने आ गई। शादी की मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सजावल सब अशरफ के रूम की तरफ चल पड़े। अशरफ, जो कि नमाज में मसरूफ थी, सलाम फेरने के बाद इनकी तरफ देखा और सजावल को अपने कमरे में देखकर हैरान हो गई। ये क्यों आया है मेरे रूम में? बहुत गुस्से से उठी। मैं माफी मांगने आया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी नई जिंदगी का आगाज नफरतों से नहीं कर सकता। हाथ जोड़ दिए। अशरफ चुप होकर बैठ गई। ये मेरे बेटे की शादी का कार्ड है, तुम सब ने जरूर आना है। वो लोग चले गए। वाह मिस अशरफ, अदाकारी अच्छी कर लेती हो, मेहराब ने कहा। जब बाप के घर थी, हर जगह वो तुम लोगों के साथ होता था, और अब यहाँ अनजान बनने की एक्टिंग। वो मेरे बाबा जान को अपनी मीठी बातों में फंसा चुका था और मैं इस बात से लाइल्म थी। जब बाबा ने इससे मेरी शादी की बात की मुझसे, तब मैं बेहोश हो गई और हॉस्पिटल भी वो साथ आ गया। वो मेरी आपसे तलाक करवाने के लिए बाबा को वकीलों के पास लेकर जाता रहा, और तुम कर लेती इससे शादी। आपसे भी तो कर ली थी, बिना देखे बिना जाने धोखा भी खाया। जब आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? और कोई भी बेटी माँ बाप की बात नहीं टाल सकती। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम सजावल से प्यार नहीं करती? नहीं, मैं इस शख्स से शदीद नफरत करती हूँ। अशरफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो सो गई। निम्रा, तैयार हो जाओ, बारात आने वाली होगी। चंदा की मेहराब ने जोर से आवाज दी। बस 5 मिनट। उधर से अशरफ तैयार होकर बाहर आई तो परी लग रही थी। मेहराब की नजर ही नहीं हट रही थी। चंदा आज दुल्हन बनकर चांद का टुकड़ा लग रही थी। बारात आई तो सजावल बार बार अशरफ की तरफ देख रहा था, जो अकेली एक सोफे पर बैठी थी। निम्रा मेहराब को चिपकी हुई थी। अशरफ किसी काम से अंदर गई तो सजावल भी बहाने से उठकर अंदर चला गया। अशरफ, मेरी बात सुनो, अब क्या बात करनी है? क्यों मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हो? अशरफ, तुम्हें एक नजर देखने के लिए ये शादी कर रहा हूँ। जिस दिन तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा, मैं चंदा को तलाक दे दूंगा। अशरफ चीखी तो अंदर वाली औरतें इसकी तरफ देखने लगी। तुम पागल हो? चंदा की जिंदगी खराब करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, वो मासूम है। चंदा अंदर रूम में जाकर रोने लगी। मेहराब अशरफ को ढूंढते हुए रूम में आया तो अशरफ रो रही थी। क्या हुआ? नहीं बर्दाश्त हो रहा ना, इसलिए कह रहा था मत आओ शादी में। मेहराब, खुदा के वास्ते ये शादी रुकवा दो, सजावल चंदा के साथ बहुत बुरा करने वाला है। पागल हो तुम? अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तुम इसकी बारात वापस भेजना चाहती हो? अशरफ बहुत रो रही थी। आंटी को बुला दो, मैं खुद बात करती हूँ। मेहराब चाहता था ये शादी हो जाए। इसने अशरफ को हाथ से खींचा और गाड़ी में बिठा कर खुद भी बैठने लगा तो निम्रा की आवाज आई। क्या हुआ मेहराब? कुछ नहीं, तुम शादी में रहो, मैं अभी आता हूँ।
वो अशफ को घर ले गया, इसका मोबाइल भी छीन लिया और रूम में लॉक करके खुद फिर शादी में वापस आ गया। रुखसती हुई तो मेहराब ने खुशी से अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। घर वापस आए तो अशफ के लिए जूस बनाकर ले गया। अशफ लेटी हुई रो रही थी। मेहराब, ये तुमने क्या कर दिया? चंदा की जिंदगी एक बदकिरदार इंसान के साथ बर्बाद कर दी। हाँ, अब वो बदकिरदार हो गया, तुम वलीमे पर भी नहीं जाओगी। मेहराब, मेरा यकीन करो खुदा के वास्ते। वो रो रही थी मुसलसल। चंदा बहुत खुश है, अपनी सेज पर बैठी सजावल का इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही रूम में आया, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया। खुद को शीशे में देख रहा था। इधर आओ चंदा। वो चुप बैठी रही। सुना नहीं तुमने? मैं कह रहा हूँ इधर आओ। इसने अपना घूंघट ऊपर किया। इतना भारी लहंगा दोनों हाथों से उठाकर सजावल के सामने आकर खड़ी हो गई। वाह, तुम मेरी दुल्हन हो। क्या सोचा था आकर तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा? वो हैरत से देख रही थी। तुम्हारी औकात मेरी जूती से भी कम है। इतनी जोर से बेड की तरफ धक्का दिया कि इसका मुंह जाकर बेड की साइड से टकराया। इसके नाक की नोजपिन नाक पर लगने से इसके नाक से खून निकलने लगा। फिर पीछे जाकर इसके बालों से पकड़कर कहने लगा, मैं अशरफ को इतना चाहता हूँ कि इसे सिर्फ एक नजर देखने के लिए मेहराब के घर जा सकूं। तुम्हारे साथ मैंने तुमसे शादी कर ली। हाँ, याद रखना, अगर मुझसे कोई चालाकी की तो बर्बाद कर दूंगा। तुम सबको खुश नजर आओ, याद रखना, इसी में तुम सबकी बेहतरी है। चंदा सिसक सिसक कर रो रही थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और ये शख्स अशरफ की भी बर्बाद कर देगा। मेरे रब, मैं क्या करूं? कैसे बताऊं सबको इस शख्स की हकीकत? खुद जूतों समेत बेड पर सो गया। चंदा वहीं जमीन पर बैठी रो रही थी। अब क्या पूरी रात मातम करोगी? अपना तकिया उठाओ और वहां सोफे पर सो जाओ। यहाँ सिर्फ मेरी अशरफ सोएगी। चंदा बेचारी उठी, अपने कपड़े चेंज किए और सोफे पर बैठ गई। सुबह उठा तो इसे कहा, सब तुम्हारे नाक का पूछेंगे, कहना नोजपिन लग गई है, और हंसती हुई जाना बाहर। खुद तैयार हुआ। चंदा रोते रोते तैयार हो गई। नाश्ते पर सब नाक का पूछ रहे थे। बेचारी वही झूठ बोल रही थी। दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं अपनी बेगम को खुद नाश्ता डाल कर दूंगा, छोड़ो सब। वो ड्रामा करते हुए हंस कर नाश्ता डालने लगा। सब ने जोर जोर से कह कहे लगाए। एक रात में बीवी का गुलाम हो गया। सब मजाक बना रहे थे। चंदा झूठी हंसी हंस रही थी। रात की सब वलीमे के तैयारी कर रहे थे। चंदा भी तैयार हो गई थी। हॉल में वलीमा शुरू हुआ तो सजावल बार बार अशरफ को तलाश कर रहा था। निम्रा ने बताया कि इसकी तबीयत खराब है, इसलिए नहीं आई। जैसे ही वलीमे के बाद घर पहुंचे, चंदा अपने जेवर उतार रही थी। जल्दी से तैयार होकर मेरी अम्मी से इजाजत लेकर आओ, हम अशरफ की तबीयत का पता करने जा रहे हैं। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं ना सुनने का आदी रही हूँ, जल्दी करो। बेचारी सास के रूम में गई। आंटी, अगर आप इजाजत दे तो मैं अशरफ भाभी का पता ले आऊं। सुना है इसकी तबीयत खराब है। बेटी, तुम आज कैसे जा सकती हो? सब मेहमान घर पर हैं, क्या सोचेंगे? कल रात को चली जाना। इतनी देर में सजावल रूम में एंटर हुआ। कोई बात नहीं अम्मी जान, मैं ले जाता हूँ, अभी कुछ ही देर में। कुछ देर ही की तो बात है, अगर ये इसके लिए उदास हो रही है तो मिल ले, ये बहुत क्लोज है अशरफ के। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। अशरफ के घर पहुंचे, केक लिया हुआ था। मेहराब नहीं था। ये लोग सीधा अशरफ के रूम में गए। चंदा को देखते ही अशरफ ने गले लगा लिया, कैसी हो तुम? और फिर इसके नाक पर हाथ लगाते हुए पूछा, ये क्या हुआ? इसने गलती की थी तो मैंने इसे सजा दी है। सजावल, तुम जानवर हो। चंदा रोने लगी। अशरफ ने अपने सीने से लगाकर अपने बेड पर बिठाया। इस जानवर को सिर्फ तुम एक बार नजर आ जाया करो। इतनी देर में मेहराब और निमरा भी आ गए। सजावल चुप हो गया। निमरा को समझ आ गई थी अब ये चंदा को इस्तेमाल करेगा। मेहराब के सामने चंदा से प्यार करता, मजाक करता, उससे दिखा रहा था कि वो खुश है, पर चंदा और अशरफ दोनों बहुत उदास थी। जाते वक्त बोल गया, फोन पर आवाज सुनाती रहना, वरना मैं चंदा की आवाजें सुनाऊंगा। चंदा और सजावल घर पहुंच गए। जाओ बेटी, तुम थोड़ा आराम कर लो, थकी हुई लग रही हो काफी। चंदा ने डरते हुए सजावल की तरफ देखा। जाओ अम्मी जान तुमसे कह रही हैं। चंदा चल पड़ी। अपना तकिया उठाकर सोफे पर सोने लगी। सजावल ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, सो जाओ बेड पर। कल तो मुझे गुस्सा था कि तुम क्यों मेरी दुल्हन अशरफ क्यों नहीं, आप अशरफ भाभी का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? वो बच्चे की माँ बनने वाली है। फौरन चंदा के करीब आया और पीछे से इसके बाल पकड़ लिए। आज ये बात की है, फिर की तो मार डालूंगा। बेचारी के आंसू निकल रहे थे। मुझे सजावल को छोड़ देना चाहिए, बहुत खतरनाक है। अपना मोबाइल बेड पर फेंक कर खुद फ्रेश होने चला गया। बहुत ज्यादा फोन बज रहा था। चंदा डरते डरते उठी और फोन को देखते कभी वॉशरूम की तरफ जल्दी से रिसीव करके कान से लगाया। दूसरी तरफ से चीखने वाली औरत की आवाज सुनते ही जैसे चंदा का सकता हो गया हो। निम्रा चीख कर कह रही थी, सजावल, तुमने कहा था तुम मेरी जिंदगी से अशरफ को निकाल दोगे, पर अपनी शादी करके घर बसाकर घूम फिर रहे हो। यहाँ वो मेरे सीने पर सांप बनकर लौट रही है।
ये क्या, निम्रा सजावल के साथ मिलकर अशरफ भाभी से गेम कर रही है? तो क्या सजावल सब कुछ निम्रा के कहने पर कर रहा है? चंदा का दिमाग घूम गया, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं अशरफ को कैसे बताऊं कि असल मुजरिम निम्रा है? फोन की स्क्रीन पर हाथ मारा, जल्दी से फोन पर लॉक था। तुम क्यों मेरे मोबाइल को उठा रही हो? कुछ नहीं, बेड की चादर ठीक ठीक है, ज्यादा बातें मत बनाओ। चंदा बहुत परेशान थी। अगले दिन सुबह चंदा ने कहा, मैं अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अशरफ के घर से भी चक्कर लगा लेंगे। अशरफ अपनी अम्मी के घर गई होगी। मेरी बेटी आ गई जी अम्मी जान। आओ बेटा। सजावल कैसे हो, ठीक हो? अम्मी भाभी को मिलकर आती हूँ। सजावल भी साथ खड़ा हो गया। वो किचन में है, बेटा तुम बैठो। भाभी अपना मोबाइल दें जल्दी। क्या हुआ, सब खैर तो है ना? चंदा की भाभी ने पूछा। हाँ भाभी, बौखलाहट में नंबर ही भूल गई। ओ शिट। वापिस आकर बैठ गई। चाय पीने के बाद सजावल बोला, इजाजत लें। घर वापस जाते हुए सजावल किसी से फोन पर बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, फिक्र मत करो, कुछ करता हूँ घर जाकर। घर पहुंचते ही चंदा को कहा, मैं तुम्हें कॉल मिलाकर दूंगा, तुम अशरफ से बात करना। जैसे ही अशरफ ने कॉल रिसीव की, चंदा ने अभी हेलो ही किया था कि जल्दी से मोबाइल फोन लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। कैसी हो अशरफ तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, चंदा से बात करवाओ मेरी। अगर चंदा से इतना ही प्यार है तो मेरी एक बात मानोगी? तुम मुझे अभी होटल में मिलने आओगी? क्या पागल हो गए हो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। चलो फिर चंदा का हाल अपनी आंखों से देख लेना वीडियो कॉल पर। तुम कुछ नहीं करोगे, चंदा को कहाँ आना है? बेचारी चंदा कितनी अच्छी है और फंस गई बुरे इंसान के साथ। सजावल ने एड्रेस सेंड किया। अशरफ अपनी छोटी बहन के साथ इस होटल में पहुंच गई। वो पहले से मौजूद था। अशरफ की बहन अलग टेबल पर बैठ गई। क्या चाहते हो? और मेरा शोहर मुझसे बात तक नहीं करता, मेरी जिंदगी तबाह तो कर चुके हो। अशरफ तुम जल्द से जल्द इस बच्चे से जान छुड़वाओ और मुझसे निकाह करो। पागल हो क्या, क्यों पीछे पड़े हो मेरे? जीने दो मुझे। निम्रा मेहराब को साथ लेकर इस होटल में आ गई। मेहराब गुस्से में आकर अशरफ की तरफ जा रहा था। अच्छा, तो इसलिए मैके जाने की जिद थी ताकि डेट पर जा सको? आप दफा करें घटिया औरत को। अशरफ ने सामने खड़े मेहराब को देखकर सर पकड़ लिया। सजावल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहते हुए अशरफ उठकर चली गई। मेहराब काफी गुस्से में घर आया। निम्रा बहुत खुश थी। घर पहुंचकर अशरफ ने मेहराब को कॉल की कि मुझे ले जाओ। मेहराब चुपचाप लेने पहुंच गया, पर रास्ते में बार बार वो अपने आंसू साफ कर रहा था। प्लीज मेहराब, ऐसा कुछ नहीं था, मुझ पर यकीन करो। चंदा की जिंदगी बहुत तंग कर रखी है सजावल ने। मैं तो इसे समझाने गई थी, मैंने कोई सफाई नहीं मांगी। वक्त गुजर रहा था। सजावल, बहुत लेट हो गया, अब तो अशरफ का बच्चा होने वाला है, अब क्या होगा? सजावल हंसने लगा। बच्चा तुम्हारा और अशरफ मेरी। मेहराब निम्रा की ये बातें रूम के बाहर से सुन रहा था। हाँ सजावल, आइडिया तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी भी तो औलाद नहीं हुई। अशरफ को तुम्हारे रास्ते से हटाते हटाते मुझे सच्ची में इससे प्यार हो गया। अच्छा, फिर चंदा का क्या करोगे? वो अगर आजादी चाहेगी तो आजाद, वरना एक कोने में पड़ी रहेगी। वैसे जिद के बहुत पक्के हो दोनों। हंसने लगे। बस याद रखना, बच्चे होने के बाद एक बड़ा इशू बनाना है। फिक्र मत करो, मैं अशरफ को होटल रूम में बुलाऊंगा और तुमने मेहराब को दिखाना है। बस फिर तलाक। मेहराब ने ये तमाम बातें सुन ली। मेरी अशरफ कितनी मुश्किल में है और मैं इस पर यकीन नहीं कर रहा। चंदा मेरी बच्ची, इसलिए तो मैं सोचता था कि चंदा कैसी औरत है जो अभी तक अशरफ से प्यार करती है, सब कुछ जानते हुए भी। अच्छा सजावल, मैं फोन बंद करती हूँ, मेहराब आने वाला है बीवी की खिदमत करके। मेहराब वापस अशरफ के रूम में चला गया। इतनी मासूमियत से सोई हुई थी। मेहराब को शायद शदीद प्यार आ रहा था। करीब बैठ गया, गौर से देख रहा था। मेरी अशरफ, तुम कितना कहती रही और मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। कैसे करता यकीन? मुझे आंखों से तस्वीर का गलत रुख दिखाया गया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि निम्रा ऐसी साजिश कर सकती है। कितने कच्चे रिश्ते थे, कांच की मानिंद टूट गए। रिश्ते कांच के नहीं, या तो दिलों के होते हैं, या एहसास के, या फिर खून के। इनसे जुड़ा यकीन कांच की मानिंद होता है, भरोसा कांच की मानिंद होता है। अगर वो एक बार टूट जाए तो फिर वैसे नहीं जुड़ पाता। क्या मुझे अभी से निम्रा को कह देना चाहिए कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, या आखिरी मर्तबा भी गिरते हुए देखना चाहिए? मुझे देखना चाहिए। वो खुद से यही बातें करते करते न जाने बेड की साइड से लगे अशरफ का हाथ पकड़े सो गया था। सुबह अशरफ की आंख खुली तो इस हालत में देखकर, मेहराब आप यहाँ सो गए? अशरफ ने इसे उठाकर बेड पर सोने का कहा। मेहराब सो गया। सुबह सुबह निम्रा चाय लेने पहुंच गई। कैसी हो अशरफ? वाह, आज मेहराब को तुम्हारी खिदमत करते करते यहाँ नींद आ गई। अच्छा, अब कितने बजे हॉस्पिटल जाना है? शाम का टाइम दिया हुआ है। मेहराब भी उठ गया। निम्रा यार मुझे चाय दो, और अशरफ को मैं खुद दूध बना कर दूंगा, चाय नहीं देनी इसे। मेहराब ने निम्रा को महसूस नहीं होने दिया कि वो सब जान गया है। और भाभी भी आज रात को पहुंच जाएंगी। अच्छा, बाजी ने मुझे तो नहीं बताया। हाँ, तुम मसरूफ इतनी होती हो।
महराब ने तंजिया कहा। शाम को हॉस्पिटल ले गए। अशरफ ने बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। महराब बहुत खुश था। चंदा और सजावल भी पहुंच गए। इनको देखकर महराब वॉशरूम में चला गया। सजावल ने अशरफ के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसी तबीयत है मेरी होने वाली दुल्हन की? अशरफ ने हाथ उठाकर फेंका, खबरदार मुझे हाथ मत लगाना। चंदा बेचारी खामोशी से देख रही थी। अच्छा, तो ये सब कुछ कर रहे थे। सजावल और निमरा भाभी भी पहुंच गई थीं। निमरा बहुत खुश थी। अशरफ काफी उदास थी, इस डर से कि महराब तो मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहा, अब कहीं मुझे छोड़ ही ना दे। महराब जैसे ही बाहर आया तो सजावल थोड़ा पीछे हो गया। निमरा अंदर दाखिल हुई अपनी बहन के साथ। माशाल्लाह, हमारा मुन्ना तो बहुत प्यारा है। दोनों बहनें खुश थीं। निमरा, उठा लो मुन्ने को। महराब, हम घर ले जाते हैं मुन्ने को। इसकी माँ का क्या फैसला करना है तुम बताओ। महराब की भाभी ने कहा। भाभी, मुन्ना और इसकी माँ अभी दोनों ही अशरफ के मेके जाएंगे। मैं कुछ काम से मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, वापिस आकर देखता हूँ। पर हमारा मुन्ना इधर क्यों जाएगा? भाभी, वो माँ है और मैं अभी अपने बच्चे को इसकी माँ के दूध से महरूम नहीं कर सकता। भाभी का मूड खराब हो गया और साथ में सजावल भी परेशान हो गया। मुन्ना सच में बहुत प्यारा था। अशरफ को इसके घर वाले ले गए। महराब अपने घर आ गया। दोनों बहनें अब इसी चक्कर में थीं कि मुन्ना इनको मिल जाए। माँ जी, आपको पोता हुआ है, महराब ने अपनी माँ को बताया। मैं बहुत खुश हूँ, महराब की अम्मी ने कहा। मेरी बच्ची को अल्लाह पाक ने अजर दिया है। वो शादी होकर आई है और दुख देखने लगी है, पर हिम्मत नहीं हारी। सच कह रही हूँ अम्मी जान। निमरा ने अपनी बाजी को कहा कि महराब को अब अशरफ को छोड़ देना चाहिए। हाँ, मैं बात करती हूँ आज। महराब हाल में से गुजर रहा था, तब भाभी ने आवाज दी, महराब, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी जी भाभी, करें। अब क्या सोचा है तुमने? हम खानदानी लोग हैं। अशरफ ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम जल्द अज जल्द कोई फैसला करो। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने सोच लिया है, कुछ करता हूँ। बुरे लोगों के साथ निभाने की हमारी कोई भी मजबूरी नहीं होती। ये तो हमने खुद को खुद मजबूर बना रखा होता है। महराब उठकर चला गया। दोनों बहनों ने हाथ पर हाथ मारा। निमरा, मेरी बच्ची, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। ये सब महराब सामने से देख रहा था। इन दोनों को पता नहीं था। बाजी को गले लगाते निमरा ने कहा, अगर आप मेरा साथ ना देती और सजावल को एग्री ना करती तो ये सब मुमकिन ना होता। अच्छा, तो भाभी जिसको मैं माँ का दर्जा देता था वो भी साजिश में शामिल थी? महराब ने अपने भाई को कॉल की। भाई, मैं किसी काम से आ रहा था पर अब नहीं आ पाऊंगा। माँ आपको बहुत याद कर रही हैं, आप चक्कर लगा जाओ। बाप के बाद महराब को भाई ने बहुत प्यार दिया था। चंदा देखो, मैं अशरफ के लिए गोल्ड की चेन लाया हूँ। अब जब वो मुझे मिलने आएगी तो मैं इसे गिफ्ट करूंगा। चंदा बेचारी खामोश रही। अशरफ को फोन करो ना। ये लो चंदा, और इसे कहो कि इसका बेबी अब 1 माह का हो गया है तो मुझे मिलने आए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। कहना तो पड़ेगा। जाकर चंदा का बाजू मरोड़ दिया। वो दर्द से चीख रही थी। उधर से अशरफ को कॉल मिला दी। चंदा की चीखने की आवाजें अशरफ सुनकर चीख उठी। चंदा, क्या हुआ है? फोन कान से लगाया और कहने लगा, होटल का एड्रेस सेंड किया है। अगर आज शाम तुम वहां ना आई तो चंदा का वो हाल करूंगा कि कोई पहचान भी नहीं सकेगा और इल्जाम मुझ पर आएगा। अशरफ सिसक सिसक कर रो रही थी। अल्लाह पाक, ये शख्स जालिम है, इसका बुरा अंजाम कर। मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं एक बागदामन औरत हूँ। तू ही मेरी और चंदा की मदद फरमा। एड्रेस देखकर अशरफ जाने के लिए तैयार हुई और रिक्शा पर निकल पड़ी। होटल में पहुंची तो सजावल सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। चलो। कहाँ? रूम में। अशरफ अभी रूम में दाखिल हो रही थी, उधर से महराब को निमरा साथ ले आई। महराब ने जैसे रूम में जाते देखा तो चीखने लगा। अशरफ रूम में गई है सजावल के साथ। निमरा बोली, आप सच्चे हो इसलिए इस औरत की हकीकत तुम्हें खुदा दिखा रहा है। क्यों नहीं छोड़ देते मेरा पीछा? अशरफ चीखी। अशरफ, मेरी हो जाओ ना। देखो, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तलाक ले लो महराब से, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मुझे जीने दो। चंदा को इतने दुख ना दो। इस बेचारी का इस सब में क्या कसूर? हाँ, मैं आजाद कर दूंगा इसी दिन जब तुम मेरी सेज पर बैठी होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर इसे भी सुकून कभी नहीं मिल सकता। मार डालूंगा इसे और तुम्हारा बच्चा भी छीन कर तुमसे बहुत दूर ले जाऊंगा। तब तुम्हें एहसास होगा मेरी तड़प का। मेरा जिस्म चाहिए तुम्हें? मुझे नोचना चाहते हो तो अपनी हवस की आग बुझाना चाहते हो? ये लो, नोच लो। अशरफ ने अपना दुपट्टा उतार कर फेंक दिया और बख्श दो हम सबको। जल्दी से अशरफ का दुपट्टा उठाकर अशरफ की तरफ बढ़ा दिया। मेरी ख्वाहिश निकाह की है। वो अशरफ के आंसू साफ करने के लिए आगे बढ़ा तो अशरफ ने इसका हाथ झटक दिया। अपना दुपट्टा सर पर लिया, अपने आंसू साफ करने लगी। बताओ क्या चाहते हो? मैं तैयार हूँ। हाँ, एक बात याद रखना कि तुम मुझसे निकाह के बाद मेरा जिस्म तो पालोगे पर मेरी रूह तक कभी रसाई नहीं पा सकोगे। सच्ची तुम करोगी मुझसे शादी? वो हंसने लगा। हाँ, इतने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मुझे खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। देखो, मैं ये चेन तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ।
मेरे हाथ से पहन लोगी तो मैं समझूंगा तुम सच कह रही हो। मुझ पर तुम्हारा निकाह से पहले कोई हक नहीं, तुम मुझे नहीं छू सकते। मैं मेहराब की अमानत हूँ जब तक इसका निकाह में हूँ। प्लीज ये चेन हमारे रिश्ते का गिफ्ट समझ लो। अशरफ ने आंखों को बंद किया। पहना दो मुझे, वो अशरफ को खुश होकर पहनाने लगा। अशरफ को इसके हाथ नागवार गुजर रहे थे। मैं आज बहुत खुश हूँ, पर मैं तुम्हें और निम्रा को कभी माफ नहीं करूंगी, जो खेल तुम लोगों ने खेला है। अशरफ तेजी से आंसू साफ करते हुए रूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो बाहर मेहराब और निम्रा खड़े थे। अशरफ ने एक पल के लिए रुककर मेहराब की तरफ देखकर निम्रा को गुस्से से देखा और सामने आते अपने बाप से कहा, चलें बाबा। मेहराब और निम्रा भी चल पड़े। निम्रा, ये अशरफ अपने बाप के साथ क्यों ले आई है? कोई भी लड़की अगर गुनाह की नीयत से घर से बाहर जाती है तो वो छुपकर अकेली आती है, पर अशरफ अपने बाप के साथ, क्या पता बाप ढूंढते हुए आया हो। नहीं, जब रिक्शे से उतरी थी तब भी बाप साथ था, मैंने देखा था। अब इसकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। हाँ हाँ मेहराब, अब तो ये औरत हर हद पार कर चुकी है। तुमने देखा नहीं था कि इसकी आंखों में डर नहीं था? हाँ मैंने देखा था। घर पहुंचते ही अशरफ ने चैन को गले से खींचा और चीख चीख कर रोने लगी। बेटी तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बाबा जान, चंदा बहुत मुश्किल में है, सबसे पहले मुझे इसकी जान छुड़वानी है। हाँ बेटा मुझे पता है। निम्रा तुम घर जाओ। मेहराब ने गाड़ी अपने साथ अपने घर के सामने रोक दी। मैं एक वकील से मिलने जा रहा हूँ। निम्रा बहुत खुश थी। मेहराब वापिस आया तो इसके हाथ में एक फाइल थी। निम्रा को बहुत तजस्सुस था। जब मेहराब सो गया तो निम्रा ने फाइल खोल कर देखी तो निम्रा की खुशी से चीख निकल गई। मेहराब ने अशरफ को तलाक दे दी थी और निम्रा बहन के पास भागी। दोनों ने एक दूसरे को चूमा, गले लगाया और मुबारकें दी। मेहराब नींद से बहुत परेशानी की हालत में जागा। हाथ में फाइल लिए बाहर की तरफ जा रहा था। भाभी, मेहराब कहाँ जा रहे हो? मैं अशरफ को तलाक देने, वो ये कहकर निकल गया। अशरफ के घर जैसे तलाक पहुंची, अशरफ को जैसे सकता हो गया। निम्रा ने सजावल को कॉल की। सजावल मुबारक हो, अशरफ को तलाक हो गई। सजावल की तो जैसे सांस रुक गई, खुशी से पागल हो गया। चंदा मुबारक हो, अशरफ को मेहराब ने तलाक दे दी, इसे कॉल करो। अशरफ को चंदा ने कॉल की तो अशरफ बहुत परेशान थी। सजावल ने फोन हाथ से ले लिया। अशरफ, अब हमें दुनिया की कोई ताकत एक होने से नहीं रोक सकती। नहीं नहीं सजावल, जब तक तुम चंदा को तलाक नहीं दोगे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। पहले भी एक सौतन की वजह से मेरा घर खराब हुआ है। चंदा जितनी अच्छी मर्जी हो, पर मेरा गुजारा इसके साथ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, मैं कल ये पेपर बनवा लूंगा। नहीं, पेपर मैं खुद बनवाऊंगी, एक साथ 3 तलाक होगी चंदा को। ओके मेरी जान, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। 2 दिन बाद अशरफ ने सारे कागजात मुकम्मल किए। सजावल को होटल में बुलाया। यहाँ दस्तखत कर दें। सजावल ने सारे पेपर साइन कर दिए। अब मैं चलती हूँ। बता दो कब लेने आऊं बारात लेकर? सजावल मुस्कुरा कर चल दिया। हाँ, अब अशरफ के पास मैं आखिरी ऑप्शन हूँ। अशरफ सीधा सजावल के घर गई। चंदा, चंदा। जी अशरफ आपी, आप यहाँ? हाँ चलो, सजावल ने तुम्हें तलाक दे दी है। पर मैंने तो तलाक नहीं मांगी। चंदा को क्यों तलाक दी सजावल ने? चंदा की सास हैरत से पास आई। आंटी, आपने कभी अपने बेटे से पूछा है कि वो क्या कर रहा है? ये बात करते चंदा के बाजू से पकड़कर इसे गाड़ी में ले गई। सजावल घर में दाखिल हुआ। तुमने क्यों छोड़ा चंदा को? चली गई क्या? हाँ, अशरफ आई थी, इसे ले गई। अच्छा हुआ, बेवजह के रिश्ते से जान छूटी। अगले दिन सजावल अपने ऑफिस गया तो सब कुछ बदल चुका था। किसी ने सजावल को सलाम नहीं किया। वो अपने रूम की तरफ भागा तो वहां पर कुर्सी पर कोई बैठा था। कौन हो तुम, और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर मेरे रूम में आने की? बहुत तेजी से कुर्सी को इसकी तरफ मोड़ा तो सामने चंदा को देखकर वो हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हंसने लगी। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? तुम्हारा ऑफिस? सजावल हंसने लगा। कल ही तुम्हारी तलाक हुई है, तुम्हें तो घर पर इद्दत में होना चाहिए था। इद्दत में क्यों होती? जिस औरत को मर्द ने हाथ तक ना लगाया हो, वो आज भी कुंवारी जैसी हो, वो क्यों इद्दत में बैठेगी? ये ऑफिस मेरा है, ये फाइल देख लो। चंदा ने सामने फाइल उठाकर फेंकी। सजावल ने उठाकर देखी। ये क्या? अशरफ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरी सारी जायदाद तुम्हारे नाम। सजावल वहां से भागा। रास्ते में अशरफ के नंबर पर कॉल कर रहा था। मुसलसल इसका नंबर बन जा रहा था। वो अशरफ के मेके पहुंचा। अशरफ तो मेहराब के साथ चली गई, इसके भाई ने कहा। सजावल, ये कैसे हो सकता है? मेहराब इसे तलाक दे चुका था। पता नहीं। वहां से गाड़ी मेहराब के घर की तरफ मोड़ दी। जैसे ही मेहराब के घर में दाखिल हुआ तो शोर था, निम्रा की आवाज थी। इसको तो तलाक हो चुकी थी, फिर ये आपके साथ कैसे? इसको सिर्फ पहली तलाक हुई ताकि सजावल को यकीन आ जाए और वो चंदा को छोड़ दे, वरना 2 तलाक तक रुजू हो सकता है। मेहराब ने चीख कर कहा। मेहराब का भाई भी ये सब सुन रहा था। जो गंदा खेल भाभी ने खेला था, निम्रा, तुमने और सजावल ने मेरे साथ खेला है। मैं तो बर्बाद हो गया होता अगर मुझे सच का पता न चलता।
सजावल भी आगे बढ़ा और अशफ को थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मेहराब ने हाथ पकड़ लिया। खबरदार मेरी बीवी को हाथ लगाया तो। मेहराब ने तलाक के पेपर फाड़ कर फेंक दिए। निम्रा, अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, क्योंकि तुम पर एतबार अब मैं नहीं कर सकता। मेरे रिश्ते मुझे धोखा देते रहे, मेरे भरोसे के टुकड़े हो गए कांच की तरह। अब भाभी ने शर्म से सर झुका रखा था। मेहराब का भाई आगे बढ़ा, अपनी बेटी का हाथ अपनी बीवी के हाथ से ले लिया। तुम तो मेरी बच्ची की भी ऐसी तरबियत कर रही होगी ना? नहीं, प्लीज खुदा के लिए मेरी बच्ची को मुझसे जुदा ना करें। तुम दोनों बहनें यहाँ से जा सकती हो, और सजावल तुम भी दफा हो जाओ। सजावल चीख कर बोला, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो निम्रा और भाभी ने कहा था कि अशफ को रास्ते से हटा दो, पर मुझे सच में इश्क हो गया है, प्यार हो गया है अशफ से। अशफ, मैं नहीं जी सकता, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मेहराब ने जाकर जोर से थप्पड़ सजावल के मुंह पर लगाया। मेरे सामने ही मेरी बीवी को? मेहराब के बड़े भाई ने कहा, तुम दोनों बहनें जा सकती हो। अशफ, तुम अपने रूम में जाओ। मेहराब ने हाथ से रूम की तरफ इशारा किया। सजावल वहां से रोता हुआ चला गया। ड्राइवर, तुम गाड़ी निकालो। मेहराब के भाई ने अपनी बीवी और निम्रा को गाड़ी में बिठाया और इनके मेके ले गया। बाबा जान, अपनी बेटियों को संभालो, इनकी अब हमारे घर और दिल में कोई जगह नहीं। हमने आसमान पर रखा था इनको, और ये हमें ही जमीन बोस करने के मंसूबे बनाती रही। क्या हुआ बेटा? निम्रा के अब्बा ने पूछा। बेहतर है अपनी बेटियों से पूछ लेना। हम इनको तलाक नहीं देंगे दोनों भाई, क्योंकि हम ये गुनाह नहीं करना चाहते। जिस दिन ये खुद मांगेगी मिल जाएगी। प्लीज खुदा के लिए हमें माफ कर दें। निम्रा और उसकी बहन कदमों में गिर गईं, पर मेहराब का बड़ा भाई चल पड़ा। अशफ रूम में अपने बच्चे को सुलाने लगी। मेहराब रूम में आया और अशफ को पीछे से गले लगा लिया। प्लीज अशफ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मुझे ऐसे रिश्तों ने तोड़ा है जिन पर मुझे तुमसे भी ज्यादा भरोसा था, और खुद से भी ज्यादा। कोई बात नहीं मेहराब, मैंने आपको माफ किया। अशफ ने बहुत ही सलीके से सारा घर संभाल लिया। बड़े भाई और इसकी बेटी का भी ख्याल रखती। भाई, मैं अंदर आ जाऊं? जी अशफ बेटा। भाई, 6 माह गुजर चुके हैं, आप भाभी को ले आए प्लीज। मेहराब का भाई अशफ की तरफ देखने लगा। अगर तुम कुछ और कहती तो मैं मान जाता, पर ऐसी औरत की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। अब तो मेरी बेटी भी याद नहीं करती। प्लीज अशफ बेटी, फिर ऐसा सोचना भी मत। आज चंदा सुबह से अशफ के घर पर थी। गुड़िया भी चंदा से काफी मायूस हो गई थी। सब खाना खा रहे थे तो अशफ के जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना चंदा की शादी बड़े भाई से कर दी जाए। मेहराब रात को रूम में आया तो अशफ ने कहा, चंदा और भाई का निकाह कर दें। मेहराब को भी ये बात बहुत पसंद आई। मेहराब अपने बड़े भाई के पास गया। भाई, चंदा से आपका निकाह कर दें? मेहराब, यार वो बहुत छोटी है मुझसे। कोई नहीं भाई, ऐसा तो होता रहता है। क्या सोचेगी वो? कुछ नहीं, बस आप मान जाएं। अगले दिन अशरफ और मेहराब चंदा के घर गए रिश्ता लेकर। चंदा की माँ ने फौरन हाँ कर दी, पर चंदा कहने लगी, मैं तो बचपन से भाई कहती थी, तो अब बहुत शर्म आ रही है मुझे। यार चंदा वो कजन है, सगा भाई थोड़ी है। अब से शहरयार कहना। अगली रात चंदा का निकाह हो गया शहरयार से। वो दुल्हन बनी अपने रूम में बैठी थी। शहरयार रूम में आए। कैसी हो चंदा? जी मैं ठीक। चंदा, तुम्हारी जिंदगी मेरी बीवी की साजिशों की वजह से खराब हुई थी। पास बैठते हुए शहरयार ने कहा, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, आप भी तो मिल गए मुझे, चंदा ने शर्माते हुए कहा। शहरयार ने चंदा का हाथ पकड़कर बोसा लिया। अगली सुबह अशफ दोनों को नाश्ते पर बुलाने आई तो सब बहुत खुश थे। मेहराब तो अशफ का दीवाना था, साथ में लगकर सारा नाश्ता लगवाया। सारा बहुत खुश, घर बहुत खुश था। चंदा अपने शोहर और शोहर की बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। चंदा ने बहुत कम वक्त में सबका दिल जीत लिया। निम्रा और इसकी बहन अपनी जिंदगी में बहुत तंग थी। सारा दिन मैके में नौकरानी बनी फिरती रहती थी। जी तो नाजरीन, ये नावल आपको कैसा लगा? अगले बेहतरीन नावल के लिए इंतजार करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।